السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیو نیوز، میں ہوں مریم خان اور میں ہوں محمد احمد علی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل سینٹ سے منظور کرا لیا گیا۔ بل وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کیا۔ فوج کو بدنام کرنے یا نفرت پھیلانے پر 2 سال تک قید، جرمانہ ہوگا۔ پاکستان افواج کے مفادات کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشل سیکریٹ ایکٹ آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا۔ ملکی سلامتی مفاد میں حاصل معلومات کے غیر مجاز انکشاف پر 5 سال تک سزا ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی سینٹ کے واک آؤٹ کر گئے۔ قومی مفاد کے خلاف معلومات کا انکشاف ناقابل معافی جرم، ارتکاب کرنے والے کو ہوگی سخت سزا۔ سینٹ میں پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 منظور۔ بل وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کیا۔ بل کے مطابق آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت معلومات کے غیر مجاز انکشاف پر 5 سال قید ہوگی۔ الیکٹرانک ایکٹ کے تحت فوج کو بدنام کرنے والے پر بھی آرمی ایکٹ لگے گا۔ فوج مخالف نفرت انگیزی پھیلانے پر 2 سال قید ہوگی۔ بل کے مطابق آرمی چیف یا با اختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی۔ Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the motion is adopted. اس قانون کی زد میں آنے والا سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ متعلقہ شخص ریٹائرمنٹ، استعفے، برطرفی کے 2 سال بعد تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتا۔ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی سے دور رہے گا۔ سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے پر پابندی کی خلاف ورزی پر 2 سال قید کی سزا ہوگی۔ آرمی ایکٹ کے تحت کوئی شخص اگر الیکٹرانک جرائم میں ملوث ہو جس کا مقصد پاک فوج کو بدنام کرنا ہو تو اس کے خلاف الیکٹرانک کرائم کے تحت کارروائی ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی یہ کہتے ہوئے سینٹ سے واک آؤٹ کر گئے کہ ہمیں بل کی کاپیاں نہیں دی گئیں۔ اچانک 3 بل منظوری کے لیے پیش کیے گئے۔ آنریبل منسٹر فلا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ چین نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ چین نے پاکستان کے ذمہ $2.4 ارب کا قرضہ رول اوور کر دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ٹویٹ کیا ہے، کہا ہے کہ چین کے ایگزم بینک نے 2 سال کے لیے پاکستان کی اصل رقم $2.40 کو رول اوور کر دیا۔ 2023-24 کے لیے $1.2 ارب اور 2024-25 کے لیے $1.2 ارب دیے تھے۔ پاکستان کو 2 سال کا اس رقم پر صرف سود ادا کرنا ہوگا۔ اور ناظرین، وفاقی حکومت نے بجلی کی قیمت میں $7.5 اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ماہانہ 1 سے 100 یونٹ تک کا ٹیرف $3 اضافہ ہوگا۔ ماہانہ 101 سے 200 یونٹ تک کا ٹیرف میں $4 کا اضافہ ہوگا۔ جی ہاں، ماہانہ 201 سے 300 یونٹ والے صارفین کے لیے ٹیرف $5 کا اضافہ کیا جائے گا اور ماہانہ 301 سے 400 یونٹ کا ٹیرف $6.50 اضافے کے ساتھ ہوگا۔ لائف لائن صارفین کے لیے بجلی کا سابق نرخ برقرار رکھا جائے گا۔ بجلی کے بعد گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ ایل پی جی کی قیمت میں غیر اعلانیہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایل پی جی مزید $20 فی کلو مہنگی کر دی گئی ہے۔ ایل پی جی کی قیمت $260 فی کلو تک پہنچ چکی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے اشرف مہتاب سے۔ اشرف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جو سرکاری نوٹیفکیشن ہے اوگرا کا، اس کے مطابق ایل پی جی کی فی کلو قیمت $177 مقرر کی گئی ہے، لیکن 1 مہینے کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں $73 اضافہ بلا جواز اضافہ کیا گیا ہے۔ اور ابھی یہ پچھلے 4-5 دن کی بات کریں تو اس میں تقریباً $40 اضافہ ہوا ہے۔ اور جو متعلقہ ادارے ہیں اوگرا اور اس کے علاوہ جو ضلعی حکومتیں ہیں اور جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بالکل اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے صارفین جو ہیں وہ لٹنے پہ مجبور ہیں۔ اربوں روپے کا ناجائز منافع جو ہے وہ لے چکے ہیں اس وقت ایل پی جی مافیا جو ہے، خاص طور پر پروڈیوسر ہیں اور مارکیٹنگ کمپنی ہے۔ اس ضمن میں جو ایل پی جی ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن ہے عرفان کھوکر، ان سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا جی وہ اس سے پہلے کئی مرتبہ آگاہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو بھی خط لکھا تھا۔ اس کے علاوہ جو مسبق ملک صاحب ہیں، متعلقہ وزارت ہے، وہاں بھی خط لکھا تھا، ان کو آگاہ کیا تھا کہ ایل پی جی مافیا اس وقت سرگرم ہے اور وہ عوام سے بلا جواز پیسے جو ہے نکلوا رہے ہیں ان کی جیبوں سے، تو اس پہ کوئی کارروائی کی جائے، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ اس ضمن میں ایل پی جی ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن نے 5 اور 6 اگست کو ہڑتال کا اعلان بھی کیا ہوا ہے اور ملک بھر میں ان کا کہنا ہے کہ شٹر ڈاؤن ہوگا، کوئی گیس فروخت نہیں ہوگی کہ ان کے مطابق کہ جو ایل پی جی ہے وہ پیچھے سے ان کو مہنگی ملتی ہے، جو کمپنی ہے وہ مہنگی دیتی ہے، لیکن جو صارفین ہے وہ ان پہ غصہ نکالتے ہیں ڈسٹریبیوٹر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشرف اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
रूस के साथ तेल के मुआहदे का फायदा जल्द आवाम को पहुंचेगा। गैस के शोबे में मुल्क को खुद कफील बना रहे हैं। मुल्क में $1.1 बिलियन की नई गैस का इजाफा किया गया है। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि 138 MMCFD नई गैस सिस्टम में शामिल की है। आज़रबाईजान के साथ LNG के हवाले से मुआहदा हुआ है। मुआहदे के दौरान पाकिस्तान हर माह LNG का एक जहाज खरीदेगा। महंगाई का सुनामी नॉन स्टॉप। एक हफ्ते में 20 अशिया मज़ीद महंगी कर दी गई हैं। बिजली, LPG, दूध, दही, चावल, मुख्तलिफ दालों की कीमतें भी बढ़ गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 3.73% इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। महंगाई में होशरुबा इजाफे का सिलसिला थम न सका। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 3.73% बढ़ गई। अदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 20 अशियाए जरूरिया महंगी हुई। LPG सिलेंडर के नरखों में 103 रुपए और बिजली की फी यूनिट कीमत में 6.15 रुपए इजाफा हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते में मिर्च, टमाटर और अंडों के दाम भी बढ़ गए। लहसुन, प्याज, गुड़, आलू, चावल, नमक, दालचना और दाल माश की कीमतों में भी इजाफा हुआ। ताज़ा दूध, खुश्क दूध, दही और दाल मसूर के नर्ख भी बढ़ गए। चीनी, घी, दाल मूंग और केले समेत 7 अशिया की कीमतों में कमी भी रिकॉर्ड की गई। PIA का फजाई ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा। अकाउंट मुंजमद होने के बायस कौमी एयरलाइन अदायगियों से कासिर। PIA ने PSO को 24 अरब से ज़ायद की अदायगी करनी है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर PIA ने PSO को आज अदायगी की यकीन दहानी कराई थी। ज़राए के मुताबिक आज अदायगी ना होने की सूरत में आइंदा 3 रोज़ तक बैंक बंद होने की वजह सूरत में अदायगी मुमकिन नहीं हो सकेगी। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे काशिफ मुनीर से। काशिफ, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, SBR की जानिब से PIA के अकाउंट जो है वो अदायगी ना होने की वजह से मुंजमद है। PIA ने जो PSO को अदायगी करनी है वो तकरीबन 24 अरब रुपए से जायद की है। अकाउंट मुंजमद होने की वजह से जो रोजाना की बुनियाद पर पेमेंट हो रही है वो अब तक रुक गई है और 48 घंटे से कोई भी पेमेंट नहीं हुई है। 25 जुलाई को 156 मिलियन रुपए की अदायगी हुई थी। PSO के जो राय से हमें पता लगा है कि PIA के CFO ने आज अदायगी की यकीन दहानी कराई थी और आज अदायगी ना होने की सूरत में 3 रोज जो है वो बैंक बंद रहेंगे, जिसकी वजह से अदायगी नहीं हो सकेगी। और अदायगी ना होने की वजह से खदशा इस बात का है कि PIA को जो PSO से फ्यूल है उसकी फराहमी जो है वो रुक सकती है, जिसकी वजह से PIA का जो फिदाई ऑपरेशन है वो रुक सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ अपडेट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा के उलमा कराम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पेशावर में। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। ये किस किस्म के लोग हैं कि इन्होंने मुहर्रम हराम का भी एहतराम नहीं किया कि मुहर्रम हो या रजब का महीना हो। आपको पता है गुज़श्ता साल हमारे कुछ सरदार का वाक़या भी हुर्मत के महीने में है, वो रजब का महीना था। या ज़िकात या ज़िलहज है तो अब महीने नहीं है। इसके साथ साथ हम अपनी तरफ से जो मुतासरा खानवादा है, जो अदनान जो एडिशनल SHO था उसकी शहादत पे उसके खानवादे से इज़हार ताज़ियत भी करते हैं। अलबत्ता उनको ये पैगाम भी देते हैं कि इस किस्म के हवादे से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। माशाअल्लाह, जैसे कि मौलाना साहब ने फरमाया, उलमा आप देखते रहे हैं कि हर वक्त उलमा सफ़ अव्वल में बैठे हैं, इनकी इन हरकत को कंडम करते हैं। इसके साथ साथ हम ये मुतालबा भी करते हैं हुकूमत से और इदारों से कि इन जैसे लोग जो है इनका रोकथाम जिस तरीके से भी हो इनकी रोकथाम कर ले। इनका रोकथाम ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनका रोकथाम ना किया जाए तो यकीनन आज तो अली मस्जिद में काम लोग थे, खुदा नुख्ता कल कुछ सरदार जैसा वाक़या भी पेश आ सकता है। तो ज़रूरी है कि इस सिलसिले में जो हुक्मरान है वो भी अपना किरदार अदा करे। उलमा तो अपना किरदार अदा किया, इंशाअल्लाह आइंदा भी अदा करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं अब शेखुल हदीस जनाब मोहतरम डॉक्टर अब्दुल नासिर साहब को दावत खिताब देता हूँ कि वो भी इजहार ख्याल फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना। खेल के मैदान से खबर शामिल करें तो कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तान की जीत का इम्कान रोशन हो गया। श्रीलंका को इनिंग्स की शिकस्त का खतरा है। दूसरे टेस्ट के चौथे दिन पाकिस्तानी स्पिनर नोमान अली का जादुई स्पेल पाकिस्तानी बॉलर ने मेजबान टीम को जकड़ कर रख दिया। श्रीलंका की 6 विकेटें 172 रन पर गिर चुकी हैं। तमाम की तमाम विकेटें नोमान अली ने हासिल की हैं। श्रीलंका को पाकिस्तान की बर्तरी ख़त्म करने के लिए अब भी 238 रन दरकार हैं। अभी मैच का 1 दिन बाकी है। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 576 रन पर डिक्लेयर की थी।
तो कोलंबो में पाकिस्तान को जीत का इम्कान रोशन हो चुका है। श्रीलंका को इनिंग्स की शिकस्त का खतरा है। दूसरे टेस्ट के चौथे दिन पाकिस्तानी स्पिनर नोमान अली का जादुई स्पेल पाकिस्तानी बॉलर ने मेजबान टीम को जकड़ कर रख दिया। श्रीलंका की 6 विकेटें 172 रन पर गिर चुकी हैं। तमाम की तमाम विकेटें नोमान अली ने ही हासिल की हैं। श्रीलंका को पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म करने के लिए अभी भी 238 रन दरकार हैं, जबकि अभी मैच का एक दिन बाकी है। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 574 रन पर डिक्लेयर की थी। जी बिल्कुल, श्रीलंका की 6 विकेटें 172 रन पर गिर चुकी हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर में बारिश की एक और धुआंधार इनिंग्स। बरसात के बाद गलियां मोहल्ले तालाब बन गए, सड़कें दरियाओं में तब्दील हो गईं। इचरा, ताजपुरा, सन्नाबाद, बरकत मार्केट समेत कई इलाकों में बदतरीन सूरत हाल देखने में आई है। बारिश ने निज़ाम जिंदगी को मफलूज कर रख दिया है और साथ में दूसरी जानिब NTMA ने पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी जाहिर कर दिया है। मोहल्ले जौहर बन गए, गलियां तालाब, सड़कें दरियाओं में तब्दील, शहर पानी पानी। बारिश ने लाहौर का हशर नशर कर दिया। कई इलाकों में घुटनों घुटनों पानी, निजाम जिंदगी मफलूज। इचरा रहमानपुरा रोड पर कई फीट पानी, इलाका नदी नालों का मंजर पेश करता रहा। बारिश ने ताजपुरा को एक बार फिर डबो दिया। इलाके भर में बदतरीन सूरत हाल। वाल्टन रोड नहर बन गई। बेदिया रोड से मुल्हका इलाके, समनाबाद, बरकत मार्केट, मुजंग, आबिद मार्केट, धर्मपुरा, मुगलपुरा, हरबंसपुरा और बाज दीगर मकामात पर मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। बरसात के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात, गाड़ियाँ बंद, मोटरसाइकिल फंस कर रह गयी। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। PDMA ने खबरदार कर दिया। दरियाओं की सतह बुलंद होने लगी। दरियाए सिंध में तोसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे, तरबेला, कालाबाग पर निचले दर्जे का सैलाब है। शहरियों को कच्ची दीवारों, छतों और बिजली के तारों से दूर रहने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब दरमियान में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। महकमा मौसमियात की जानिब से अर्बन फ्लडिंग का खदशा और PDMA की जानिब से फ्लड हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरिया रावी में इंतजामिया के साथ साथ गोश्ताखोरों ने भी सैलाब से बचाव के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदा रिजवाना शेख से। जी रिजवाना। जी बिल्कुल, भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने के बाद अवाम के ज़हनों में सैलाब का बहुत ज़्यादा खौफ और हरास फैल चुका था। लेकिन अब जो है, इधर मैं दरिया रावी शादरा के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सियाहों की बड़ी तादाद खुद को जो है वो तसल्ली देने के लिए पहुँची हुई है। और मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, लड़की मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा, आपने देखे क्या विजिट कर रही हैं आप? जी देखें, बड़ी दूर से हम आए हैं यही विजिट करने के लिए। यहाँ पे कितना बहाव है, कितना पानी है। यही सुना था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर छोड़ा गया सैलाब का, और ये लेकिन बहाव निशान से तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी पानी आया था। लेकिन अभी फ़िलहाल बहाव ज़्यादा है, लेकिन पानी कोई इतना ख़ास ज़्यादा नहीं है। खौफ और डर की इतनी कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। और देखें, यहाँ पर अब इतनी दूर से विज़िट करने आए हैं, यहाँ पर इतनी गंदगी है कि कोई मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पर ख़ास। इतनी आवाम यहाँ पर आए विज़िट करने के लिए, तो यही है आवाम से कि दरख्वास्त की है कि आप यहाँ पर ना इसको ज़रा सफाई से रखें। जी बिल्कुल, आज जो है सियाहों की बड़ी तादाद रावी का रुख भी कर रही है। यहाँ पे सेल्फियाँ भी बना रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि इनकी जानिब से हुकूमत को भी ये मशवरा दिया जा रहा है कि दरिया रावी को जो है इस मुकाम को साफ़ किया जाए, पाक किया जाए, ताकि जो है सियाहत को भी फ़रोग मिल सके और ज़र मुबादला का ज़रिया भी बनाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सादिकाबाद का रुख करें तो सादिकाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद पानी ने कब्रिस्तान का रुख कर लिया है। मुतअद्दिद कब्रें तक बह गई हैं। शहरी प्यारों की कब्रों की मुरम्मत कर रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं मोहम्मद शाबान से, जो कि इस वक्त शहर खामोशता में मौजूद है। शाबान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सादिकाबाद में होने वाली मूसलाधार बारिशों ने जहाँ पर बाकी चीज़ों को नुकसान पहुँचाया, वहीं पर जो है वो सादिकाबाद के जो कब्रिस्तान है उनकी कब्रें भी जो है वो बह गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो शहरी हैं उन्होंने कब्रिस्तान का रुख किया और अपने प्यारों की कब्रों को जो है वो उनकी देखभाल कर रहे हैं। उनकी जो है मरम्मत का काम भी जारी है, क्योंकि बारिशें जो है वो 2-3 दिन से सादिकाबाद में मुसलसल हो रही हैं, जिसकी वजह से जो सादिकाबाद के शहरी हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद जो है वो जो पानी था वो बहकर जो है वो कब्रों में आ गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कब्रें जो है वो डैमेज हुई है और कब्रों को काफी नुकसान पहुंचा है। सादिकाबाद के शहरी जो है वो अपने प्यारों की कब्रों पे जो है वो इस वक्त आए हुए हैं और फातिहा खानी भी कर रहे हैं। साथ में उनकी मग़फ़िरत के लिए जो है वो दुआएं भी की जा रही हैं और इसके साथ साथ उनकी जो कब्रें डैमेज हुई हैं उनको जो है मरम्मत का काम भी जारी है। और ये बारिशों का सिलसिला जो है वो 2-3 दिन से जारी है। वक्फे से बारिश होने वाली बारिशों ने जो है वो काफी शहर भर में भी तबाही मचाई है। मुहर्रम हराम के सिलसिले में भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो बारिश के बाद कब्रें बह गई हैं उनके सिलसिले में भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और अपने प्यारों की कब्रों की मरम्मत का काम जो है वो कर रहे हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज़।